بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکات ادا کرے، وحج البیت وصوم رمضان، اور پھر اللہ مال دے، اللہ پیسہ دے، طاقت دے، استطاعت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے گھر کا حج کرنا، اور اللہ اگر رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑنا اور اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے۔ اور یہ یاد کر لیجئے، ان ستونوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر اسلام کی یہ بلڈنگ کھڑی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی بنیاد جس پر مسلمان جس کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کے دائرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک عز و جل کے سچے رسول، اللہ کے بندے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس کو تسلیم کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ جو توحید کو سمجھے، اسلام اس کو دوسری چیز کی دعوت دیتا ہے، اور وہ چیز نماز کا قیام۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے دعوت کا اسلوب سکھاتے ہیں، اے معاذ، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने की दावत। अगर ये इसको मान ले फिर इनको नमाज की दावत देना, अगर नमाज की दावत को मान ले तो फिर इनको ज़कात की दावत देना। तो ये हदीस भी हमारे सामने इस्लाम के सतून गिनवा रही है। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार, फिर नमाज की अदायगी, फिर मालिक अज़्ज़ा वजल अगर माल दे तो उसमें से ज़कात अदा करना, वहज्जिल बैति व सौम रमज़ान, और फिर अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसा दे, ताकत दे, इस्तिताअत दे तो जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर का हज करना। और अल्लाह अगर रमजान का महीना हमारी जिंदगियों में आए तो इस रमजान के महीने में रोजे रखना। ये चौथा रुकन है जिस पर रोजे फर्ज हो, जो रोजा रखने की इस्तिताअत रखता हो और फिर वो रमजान के रोजे ना रखे, जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो और फिर वो ज़कात अदा ना करे, उसने इस्लाम के सतून को गिरा दिया। और जिसने इस्लाम के एक सतून को गिरा दिया उसकी इस्लाम की बिल्डिंग गिर गई। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा जब ज़कात का इनकार करने वालों से जिहाद के लिए ऐलान करते हैं तो सहाबा कहते हैं, ए अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफा, क्या तू उनसे जंग करेगा, उनसे जिहाद करेगा जो नमाज पढ़ते हैं, जो हज करते हैं, जो रोजे रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाने लगे, हाँ मैं उनसे जंग करूंगा जो ज़कात और नमाज में फर्क करेंगे। अल्लाह की कसम, अगर एक रस्सी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे मुझे देने से इनकार करेंगे, इस रस्सी के लेने के लिए भी मैं जिहाद करूंगा। क्योंकि इस्लाम के 5 सतूनों में से अगर किसी ने एक का इनकार किया तो वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, उसकी ये बिल्डिंग गिर जाती है। 2 हिजरी के अंदर मालिक अज़्ज़ा वजल की तरफ से ये रोज़ा अहले ईमान पर फर्ज हुआ। कुरान हकीम बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पे रोज़े फर्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए। ये रोजे रखवाने का मकसद क्या है? तुम्हें सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रखने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह की इबादत का मफहूम तुम्हारे दिलों में उतर जाए। पानी हलाल है, खाना हलाल है, पाक है, मौजूद है, कमरे के अंदर तन्हा हो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन रमजान के दिनों के अंदर इस पानी को अपने पेट में नहीं उतारते, इस खाने को हलक से नीचे नहीं उतारते। क्यों? अल्लाह के डर की वजह से। ये अल्लाह ट्रेनिंग कोर्स करवा रहा है, तरबियत कर रहा है। ये रमजान का 1 महीना बाकी महीनों के लिए हमें रास्ता और मनहज दे रहा है कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से दिन के अंदर हलाल चीजों से बाज आ जाते हो तो अफ्तारी करने के बाद अल्लाह ने जो चीजें हराम की है उससे भी बाज आ जाओ। इस रोजों का मकसद, इस इबादत का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा हो कि पानी है तो हलाल, लेकिन चूंकि मैं रोजे से हूं, अल्लाह की शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती मैं इस पानी को पीऊं, खाने को खाऊं, बीवी के करीब जाऊं। ये सबक है, ये आपकी तरबियत है। जब आपने इफ्तार कर लिया अब भी ख्याल करो, मैं सिगरेट पी रहा हूं, सारा दिन सिगरेट नहीं पी, इसलिए कि अल्लाह ने हराम, अल्लाह की तरफ से पाबंदी, पानी पर पाबंदी, खानों पर पाबंदी, फलों पर पाबंदी। अब इफ्तारी करने के बाद मैं अब भी उसी अल्लाह का पाबंद हूं, मैं आजाद नहीं हुआ। मुसलमान की सारी जिंदगी अल्लाह की शरीयत की गुलामी में गुजरती है। तो इफ्तारी के बाद देखूं मैं हलाल खा रहा हूं या हराम। और ये रोजा पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि मुसलमानों पर ये फर्ज है, इसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। आपने अक्सर देखे होंगे मुसलमान रमजान का रोजा आता है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे नहीं रखता, अंदर कमरे में बैठ के छुप के खा लेता है। जिस तरह नमाज का तारीख